Hello everyone. No matter how many lives I do, I think I'm never prepared. तो मुझे से लगता है आज I want to be. So wait. I hope I don't forget anything. Tiring. Hi everyone. Hi Diva. I have so many diaries, like I just lose. This one's given to me by WWF, which is World Wildlife Federation. And ये 4 साल पुरानी डायरी है, माय गॉड. एंड इसमें मैंने लिखा है 6 दिसंबर 2016 को कि आई जस्ट लव द आइडिया ऑफ राइटिंग, द होल आइडिया ऑफ पेन टू पेपर. Here's hoping I liberate those thoughts in my brains that limit me. And I haven't written beyond 2 pages, 3 actually. Anyway, today is the 1st of November. It's my birthday month. Just thought I should remind you. Hi Haughty Princess. Hi Mukesh. आज जो तारीख है ना वो 1/11 यानी 1/11 तो मेरी बहुत प्यारी सहेली है तमन्ना. उनके इस नए बुक में मेरा एक फॉरवर्ड भी है उनके ऊपर. आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ हर बुक. एंड हियर आई एम टॉकिंग अबाउट राइटिंग इन पेन एंड पेपर. सो बहुत सारे लोगों ने हाय निखिला निखिल कटारियन सॉरी. So I have a very sweet astrologer friend joining me today, जो हमको बताएंगे about a lot of things that are happening internationally, but also for the people who actually requested in for personal readings. आपके भी कुछ details मैंने उनको pass on किए हैं, तो it's going to be tough to accommodate everyone. So please forgive me if I haven't. Is he here already? Astro Avi. Let me take a look because I don't think he knows how this works. Yes, he is here. So they say 1/11 is like really magical. It's 1/11. So I was hearing my friend Tamanna talk about it as well. So I'm happy that today I'm going to be talking about some hopefully positive things. Hello. Delhi connects to Mumbai. आपकी आवाज नहीं आ रही है. Is it better? हाँ, very nice. बाय द वे अविनाश, मैंने आपको पता नहीं बोला है कि नहीं, पर आपकी आवाज बहुत सुंदर है. इट्स वेरी रेडियो डीप. इट्स ग्रेट इफ यू आर इन सम ऑडियो मीडियम. आई होप यू गेट अ रेडियो शो सून समडे. Yeah, that's all your call. सो मैं आपसे पहले बिफोर वी स्टार्ट दिस सेशन ऑफ, आई वांट टू आस्क यू कि एट व्हाट एज आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट आया. बिकॉज मैं आपको बताती हूँ, मैं मैथ्स में वैसे तो पढ़ाई में बहुत ही अल्लड़ और बहुत ही मतलब मेरा मन ही नहीं लगता था, बट मैथ्स मुझे बहुत पसंद थी. एंड स्ट्रेंजली थ्रू द रूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी आई लव्ड न्यूमरोलॉजी, एंड दैट्स समथिंग आई कैन टैप इनटू. आई लव नंबर्स. Looking at you, I'm guessing that you have a very cerebral background and somehow astrology came in the way. So ये science और astrology का संगम कब हुआ था? Combination कैसे हुआ? I'll tell you. Astrology is always on a passion, right? I actually passed out from IIM Bangalore, 99 batch. Then I From worked where? with IIM Bangalore. IIM. 99. Oh my God. Okay. Yeah. Okay, and I did my CFA as well. So numbers were something which was always probably unique for That me, was right? more in you. Okay. And that was always. Now, it's like a very funny story to be honest, because I was the president for HP University Shimla in the year 1992-95. Okay. And to probably at that time, because young age, right? And that is the time just to impress certain people, practically. That is the time the astrology came into picture. Initially was completely एक logical. second, stop.
You did Yeah. astrology to impress people, but how did it impress itself upon you? आपको कैसे पता चला कि आपको इसमें interest है? कौन By the चला way, रहा है? once I started getting into, I started predicting random stuff, to be honest, looking at stars and kind of stuff, because I never had any technical knowledge about astrology per se. But a lot of predictions started coming true, okay? Coming to And you. हाँ. no, they actually started coming true in the sense I told somebody about something and it actually happened, right? So that is the way it started developing, okay? But simultaneously, I was in a corporate job because I worked with corporates, Honeywell, then was primarily private equity funds afterwards, almost till 2011, right? So astrology was always like a sidewalk where a lot of friends and circle, they started coming back to me, right? In terms of looking at the horoscopes and kind of stuff and stuff. Right? And then 2011-12, I पर left my job. एस्ट्रोलॉजी को समझने में भी टाइम लगता है, तो क्या आपकी लाइफ Uh, में कोई घटना घटी या आपको ऐसे ही किसी ने कभी किसी अंकल ने या किसी एस्ट्रोलॉजर ने कुछ बोला और फिर आपको लगा आई आल्सो वांट टू नो दिस साइंस, ये कैसे हुआ? No, I'll tell you. Lot of I don't know how it's going to be, but it's like a lot of things actually just come naturally to me, to be honest, right? I don't want to say that, but it's like a lot of intuitions, lot of, and then I actually started going back and started studying the behavior of the planets, right? Broadly, because I don't, generally speaking, I never went through books and all those things, right? The basic premise was just to understand because my basic belief, to be honest, is even the gods and grahas, whichever we accept, right? जी. Probably they were human beings, right? But with their sheer dedication, discipline, वो and स्टार commitment, right? गॉड्स बन गए. They reach to that level, okay? हाँ. So again, because if it is like sun we consider as the king, technically, right? So how a king will respond in a particular situation, how does he think and kind of stuff, right? That is the thought process I started following, okay? मुझे तो ऐसा Same लगता है कि was आपने स्टार्स की एस्ट्रोलॉजी देख ली, मतलब स्टार्स star कैसे ke, बिहेव करते हैं. no, because I started emulating, right? I said, if it is sun, then how sun will behave, right? Because he's the king, so how king will behave. Now, if we go to the next star, which is say Mars is the soldier, right? He's the commander-in-chief for the king, right? So how a commander-in-chief, because he's like brutal, completely focused, dedicated, right? He will not think about anything else. Particular task, he'll go and accomplish it, right? Now, on the other side, we look at Jupiter. Jupiter is basically the god, the guru, basically the teacher for the devtas, right? So, how a teacher thinks, right? He'll be very good in thought process, he'll be very good in strategy, vision, XYZ, but implementation something which is not associated with a guru, right? Because he can teach you, but if we ask him to go and implement, he'll be a bit weak on that particular front, right? I'm just going to So, speak to our yeah, people here, sorry. ईमान yeah. हमारे साथ अविनाश जी हैं दिल्ली से, मैं मुंबई में हूँ, वो दिल्ली में है, और ये बहुत अच्छी प्रिडिक्शंस करते हैं. अब मैं बहुत इंटरेस्टेड इनकी स्टोरी में इसलिए भी हूँ क्योंकि अगर IIM बैकग्राउंड का बंदा होकर न सिर्फ एस्ट्रोलॉजी करते हैं, न सिर्फ लोगों की लाइफ में थोड़ा डायरेक्शन लाते हैं, बट ही इज ऑल्सो डूइंग समथिंग एट अ वेरी फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी कि इंसानियत के नाते वो लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं. तो इससे पहले कि हम अपने इस चैट को शुरू करें, अविनाश, आई वुड लाइक कि इस चैट के एंड में हो सके तो हम इंग्लिश रखेंगे, तो थोड़ा हिंदी में बोलेगा. आपने Okay. एक बहुत खूबसूरत संस्था शुरू की है, और वो Yeah. कब शुरू हुई, इसके पीछे का क्या थॉट था, विल क्विकली वांट एवरीवन टू नो, ताकि लोग उनकी फ्यूचरोलॉजी आपके साथ करवाएं और आपको जो फी देंगे वो आप नहीं रखते हो, वो आप इस ऑर्गेनाइजेशन को देते हो. क्या है ये? Goes to the quest, yeah, absolutely. हुआ क्या था कि which was this lockdown technically, right? Because I used to see horoscope for a lot of people, right? जी. Good large scale industrialists as well, to be honest, good friends, right? So a lot of friends actually suggested. He said, Avinash, you don't charge anything from us, right? No issues, because that's not something okay. If you don't want anything, don't take it. हाँ. That's not an issue. But if you actually can channelize this money for the welfare of the people, to be honest, why हाँ. not? हाँ. Right? So they are the one who actually suggested me this, and we started our NGO. NGO just got registered around 15-20 days back, right? The अच्छा. plan was कि lockdown से पहले we actually initiated the process, but because of lockdown things couldn't work out, right? ये So now it एनजीओ just got बड़े लोगों के लिए, वृद्ध लोगों के लिए है, किसके लिए है? बेसिक जो emphasis है, to be honest, पहला emphasis जो मेरा है, because I think 70-80% of problems का जो cause है, that is mental health, to be honest, right? And
Yeah, because either it is poverty, whether it is women empowerment, to be honest, even case of elderly people, right? Even if I'm saying somebody is not feeling well, somebody is going for surgery, mental health is something which is the basis for any kind of problems, to be honest, right? And in that, what I think is astrology can play a lot of positive role. I'm not saying astrology because I'm a firm believer. Astrology is broad guidance, right? It's जी not something which is like a given absolutely in event that this is जी something which is going to happen or that is something which is going to happen. So my thinking is when I actually started clubbing astrology because that comes naturally, to be honest. And other side, I've worked with large corporates as well, right? So that process, understanding of that process, anyway. Currently also, I have my own business as well. So those things actually started coming into mental health, and that is where I personally felt mental health is something which has to be the basis, to be अगर honest. ऐसे देखे जाए तो मुझे ऐसे हाँ कभी जी, कभी लगता है एस्ट्रोलॉजर्स मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट ही हैं उनका हुनर यूज absolutely. करते हुए आपको चैनलाइज और फोकस देकर, है ना? Correct, 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 correct. Absolutely correct. And that is the area which is close to me personally, to be honest. अच्छा, But in आपसे एक addition, सवाल है। हाँ जी, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ आपने काम किया है जिनकी बहुत बड़ी बड़ी पैकेजेस है सैलरी के तौर हाँ, पर, और जो बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। आई वुड कंसिडर माई सेल्फ absolutely. फॉर्चुनेट हाँ, कि मेरी फैमिली, मेरा जॉब बहुत सिक्योर है, बट फिर भी हम लोग के अंदर सवाल बहुत होते हैं। तो इफ आई हैड टू absolutely. आस्क यू, एस्ट्रोलॉजी Yeah. जो है क्या बहुत सारे अक्लेम्ड और एजुकेटेड लोग आपके पास ज्यादा आते हैं एज अपोज Uh, टू? true. Absolutely true. Because I personally feel because I'm not a normal astrologer who will tell you कि हाँ this is something which you have to do this puja, you have to do this puja, is हाँ you have to do because my understanding is I'll primarily go to the core, right? That this is the problem in the overall horoscope. And unless it is like a do or die situation, because there are certain people who actually we feel that there's some health issues or some very extreme level of problem, I never go for the basic remedies and kind of stuff, right? What I'll always go for is where I'll try and identify the problem, that this is the basic problem, right? And then try and rectify. Because normally, what I have seen this, because I've seen almost like 50,000 horoscopes till now, right? There are three O stars which actually creates a large problem, right? Large problem in the sense that Rahu, Ketu, and Saturn. These are the three planets because both all three are राहु very केतु extreme. आ गया मेरा, सॉरी। Yeah. राहु केतु और शनि। Correct. अविनाश जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप थोड़ा हिंदी में ज्यादा बोले। हमारी जो हाँ, यहाँ की ऑडियंस है उनको एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, और वैसे भी अगर सही। कोई हमें ज्वाइन कर ही रहा है तो वो हिंदी समझेगा। हाँ, हाँ। नो एब्सोल्युटली। सो राहु केतु और शनि जो है ना वो बेसिक प्रॉब्लम देते हैं। उसका रीजन क्या है? बिकॉज वो लोग हमेशा एक्सट्रीम लेवल पे रिजल्ट्स देते हैं, राइट? राहु इज प्रैक्टिकली ऑब्सेशन, केतु इज कंप्लीट डिटैचमेंट इन द एक्सट्रीम केसेस, ओके? एंड सैटर्न इज समथिंग विच मेक्स यू वर्क फॉर समथिंग, ओके? सो अगर आपको लगता है कि जिंदगी में ऐसे सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, बिकॉज शनि जो है, शनि प्रोसेस सिस्टम पूरी दुनिया में दे जी, आर, वो जो प्रोसेस सिस्टम है ना, दे ऑल शनि की देन है। मतलब या शनि इज द वन हु एक्चुअली कंट्रोल्स दैट, ओके? सो वो आदमी को भी वही सिखाना चाहता है कि यार अगर आप जिंदगी में आए हो तो यू हैव टू फॉलो पर्टिकुलर, आपको एक डिसिप्लिन सिस्टम प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। गवर्नमेंट के टैक्सेस है, देन फॉलो द प्रोसेस, राइट? नॉर्मली आप टैक्सेस पे कीजिए, हाँ ठीक है। बट शनि आपको ये भी नहीं बोलता है कि आप एकदम साधु संत बन के बिल्कुल काम कीजिए, राइट? शनि ये बोलता है कि आप जो प्रोसेस है, जो सिस्टम है, उसको फॉलो कीजिए। आप सिस्टम में कई जगह पे ऑब्वियसली लॉट ऑफ पीपल, मतलब नॉर्मली होता क्या है कि हमको इनकम टैक्स पे करना है, तो गवर्नमेंट ने कुछ डिडक्शंस बनाई है कि इसके हिसाब से इनकम टैक्स पे करना है। तो शनि आपको ये नहीं बोलेगा कि आप पूरा का पूरा टैक्स पे करो या टैक्स ज्यादा पे करो, राइट? वो आपको बोलेगा गवर्नमेंट ने डायरेक्शंस दिए तो उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? बट फॉलो द धर्मा, धर्मा ऑफ जहां द तक प्रैक्टिकल मुझे पीपल। समझ में आया है शनि देवता हाँ जी, pretty much एक अच्छे कोर्ट के जज हैं और वो एब्सोल्युटली, आपकी जजमेंट देते हैं, जजमेंट देते एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हैं, है एंड ना? वो जजमेंट भी आपको किस पे देते हैं? वो बोलते हैं कि आप अपना एक सिस्टम डेवलप करो, राइट? लुकिंग बाहर की दुनिया को देखो, सिस्टम मतलब दुनिया में क्या चल रहा है, उसके हिसाब से अपना एक सिस्टम डेवलप करो, अपना एक डिसिप्लिन डेवलप करो, एंड ब्लाइंडली फॉलो दैट डिसिप्लिन। दैट इज व्हाट मतलब शनि वो आपको देते हैं, ओके? चलिए, राहु जो है, हाँ जी, हाँ नहीं, आप बताइए। राहु? राहु इज ऑब्सेशन। तो राहु आपको हमेशा एक ऑब्सेशन देते हैं टू अचीव समथिंग, बिकॉज राहु इज ओनली हेड, बिकॉज राहु केतु इज द सेम बॉडी, राहु इज हेड एंड केतु इज द लोअर बॉडी, राइट?
और राहु आपको देगा कि एक फोकस बहुत क्लियर होगा आदमी का, बट उसको बैकअप करने के लिए एफर्ट में हमेशा कमी होगी। ओके, एंड केतु ऑन दी दूसरे साइड पे, केतु इज बॉडी ओनली, बट उसको पता नहीं रहेगा कि मुझे करना क्या है लाइफ में। अच्छा। तो जब तक राहु और केतु दोनों साथ में नहीं मिलते हैं या कोई सपोर्टिंग रहे साथ में उनके नहीं होता है, सो दे एक्चुअली क्रिएट अ मेजर इशू, और So वहीं are से you मेंटल saying हेल्थ बिकम्स अ मेजर इशू। Ketu is directionless without Rahu, है ना? Ketu is directionless without Rahu, and Rahu is complete direction without any efforts without Ketu. And secondly, इन सो दोनों को कंट्रोल करने के लिए देयर हैज टू बी, मतलब दूसरे प्लैनेट्स को सपोर्ट करना चाहिए इन्हें, बिकॉज अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो ये दोनों एकदम कंप्लीट डायरेक्शनलेस, मतलब दे कंप्लीटली बिकम्स अ डायरेक्शनलेस काइंड ऑफ प्लैनेट्स। आई थिंक लोगों को अगर एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है तो मे बी दे माइट फाइंड आवर कॉन्वर्सेशन लिटिल हेवी, तो मैं ऐसा करती हूँ, लेट्स गेट डाउन टू आवर प्रेडिक्शंस। सबसे पहली बात, हर कोई पैसा बनाना चाहता है, और आजकल क्योंकि स्कैम 1992 इतना पॉपुलर हो गया है, तो मैं देखती हूँ हर जगह, चाहे मेरे कॉलीग्स हो, फ्रेंड्स हो जो इन्वेस्ट करते हैं, सबको लगता है भाई मार्केट में इन्वेस्ट करके हम बन जाएंगे हर्षद मेहता लेवल के रिच। तो डू यू वांट टू टेल अस मार्केट्स के बारे में, क्योंकि आप काफी सारे प्रेडिक्शंस कर रहे थे जो सही हुए हैं। बिकॉज हम लोगों ने हिस्टोरिकली वी डिड अराउंड 6 प्रेडिक्शंस अभी तक किए हैं हम लोगों ने, राइट। फर्स्ट वाज मेटल सेक्टर बूम टिल 31 अगस्त, बिकॉज प्रैक्टिकली ये 23 सितंबर को हमारी कॉल खत्म हुई थी, राइट। बिकॉज हमने 23 मई व्हेन इंडेक्स वाज ऑलमोस्ट 8500, उस टाइम पे हम लोगों ने लोगों को बोला था कि आप ऐड करना शुरू करो इसको। रीजन बिकॉज पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ सैटर्न वाज समथिंग व्हिच वाज इंपैक्टिंग इट, राइट। उसके बाद वो प्रेडिक्शन ठीक रही, सो 31 अगस्त को वी एग्रीड आउट, राइट। सेम वे 23 सितंबर प्लस माइनस 1 वीक वी सेड मार्केट्स आर गोइंग टू बी डाउनवर्ड स्पाइरल फॉर नेक्स्ट 6, 8, 10 मंथ्स, राइट। सो विच आज की डेट में अगर मैं बोलूं तो फरवरी तक मार्केट का जो आउटलुक है, आउटलुक इज नेगेटिव। In between there can be spike ups, a day, 2 days, right? Trading bounce back, that's a possibility. But majority of market per se, right? अगर किसी को इन्वेस्ट करना है उसको वेट करना चाहिए टिल February एंड, राइट। अगर किसी का ऑलरेडी इन्वेस्टेड है कैपिटल, देन उसको रिस्क को मैनेज करना चाहिए। रिस्क को मैनेज करने का तरीका एक हो सकता है कि हमारे पास कुछ पोर्टफोलियो पड़ा है तो साइमल्टेनियसली वो प्लस है, बिकॉज दैट्स अ लॉन्ग पोजीशन, राइट। सो वी शुड टेक अ नेगेटिव पोजीशन विच इज ऑन द मार्केट। सो अल्टीमेटली क्या होगा कि उस जगह पे एक जगह पे प्रॉफिट आएगा, दूसरी जगह पे लॉस आएगा, राइट। तो वो मैनेज हो जाएगा। बट मेरा सब कहने का मतलब है कि अगले 4, 5, 6 महीने विच इज टिल ऑलमोस्ट मार्च फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, राइट। फेब्रवरी एंड मार्च फर्स्ट वीक नॉर्मल, क्योंकि मेरा कहने का मतलब है कि मार्च फर्स्ट वीक इज द टाइम लाइन, ओके। सो हम लोग को पहले ही एक हफ्ता पहले वी शुड टेक अ प्रिकॉशन एंड जस्ट एग्जिट आउट। अगर हमने शॉर्ट भी किया मार्केट, शॉर्ट मतलब हम लोगों ने बेचा भी है मार्केट में सामान अगर, तो वो पहले ही कवर कर लेना चाहिए, बिकॉज लास्ट के 200-300 पॉइंट्स में कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं तो पड़ता। आर यू सेइंग मार्च में थोड़े गिरेंगे और मार्केट? नहीं, अभी से स्टार्ट है, मतलब 23 सितंबर के बाद, राइट, जो जा चुका है, मार्केट इज ऑन अ डाउनवर्ड स्पाइरल। बीच बीच में हाँ नीचे है, एंड इट विल बी सब्सटैंशियल। एंड अब सब्सटैंशियल मेरा मार्च में इट विल गो अप। हाँ, मार्च फर्स्ट वीक इट विल बॉटम आउट, राइट। सो उसके बाद देन थिंग्स विल स्टार्ट मूविंग अप, कोई डाउट नहीं है उसमें। तो पीपल शुड स्टार्ट बाइंग नाउ ना, मेरे तो यही बोलते हैं कॉलीग्स की जब नहीं नीचे नहीं, आज की डेट में क्या है, नहीं नहीं, अभी तो करेक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, बिकॉज 12,000 का हम लोगों ने हाई बनाया था अक्टूबर में, राइट। दैट इज स्टिल इंटैक्ट, मतलब करेक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। करेक्शन फॉर मी प्रैक्टिकली मींस ऑलमोस्ट लाइक 30-35% करेक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट। सो विच मींस कि इंडेक्स जो हम लोगों ने मार्च में देखा था निफ्टी का इंडेक्स, राइट, ऑल प्रोबेबिलिटी विल टच दैट अगेन, राइट। उसका दो रीजन है, मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि एग्जैक्टली हम लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जो ये वाला फॉल होगा मार्केट का, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी, राइट। दिस इज मोर इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन विच इज कमिंग अप, ओके। सो लेट्स नॉट कम टू दैट। जियोपॉलिटिकल। फाइनेंशियल में तो हम समझ गए हैं। आपकी कौन सी प्रेडिक्शन है जो आपको पता है 10% होने वाली है, और ऐसे कभी हुआ है आपकी प्रेडिक्शंस गलत भी गई हैं? नहीं, अभी तक टच वुड नहीं हुआ है, राइट। इट वाज ओनली अ डिफरेंस ऑफ 1 डे व्हेन आई सेड 27th, आई सेड 28th October market will go down by 1.5%, okay, and it went down by 1.5% on 27th instead of 28th, okay. रीजन बहुत उसमें चुप मैंने गए आप, सर सॉरी, माइनस मार्क्स। उसमें मेरी गलती हुई थी, बिकॉज बिकॉज ये प्रेडिक्शन मैंने किया था इन द मंथ ऑफ मई, ओके। सो लास्ट में होता है ना कि यू थिंक कि यार ये 6 महीने निकल गए हैं, लास्ट के 1-2 दिन में कुछ फर्क नहीं आता है,
तो वो ब्रॉड कैलकुलेट कर दिया था मैंने। सो जब प्रिसाइजनेस देखा तो 27th को ही मैंने अपना ट्वीट पे मैसेज कर दिया था, तो सब लोग को नहीं मिला। सो आई सेड अभी सर मार्केट्स आर गोइंग डाउन। हम आपके परफेक्शन पे नहीं जा रहे हैं, अब आप आपकी जियो पोलिटिकल प्रिडिक्शन दे दो, हाँ। फिर हम आपको परफेक्शन के मार्क्स देंगे जब वो सच होंगे तो। नहीं, जियोपॉलिटिकल में थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट टिल February there's lot of changes which are going to happen, and they are all extremely macro level changes. Extremely macro level changes. It's not like a normal ki this person is fighting with this person and that is not there, right? The resettlement of the broader geopolitical hierarchy, okay? At the moment जब भी हम लोग बात करते हैं, हम लोग बोलते हैं यूएस इज नंबर वन, मे बी चाइना इज नंबर टू, यूरोप प्रॉब्ली जर्मनी और फ्रांस whosoever it is comes number 3 or 4, right? India may be number 5, Russia falls in between 3 or 4, right? That hierarchy is going to change, right? उसके जो सीड हैं वो अगले 6 महीने में होने हैं. That is the major issue. In all probability, the cause for these kind of problems primarily is going to be China. Yeah. उनको पेनल्टी, वो उनके पास इतने पैसे हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को डेट में डाल दिया है उनकी खुद की रिनी बना Absolutely. के। ये जो उन्होंने कोरोना दिया है ना, इसको लेके हाँ कुछ जी. तो यूनाइटेड नेशंस है किसको, उनको दे शुड मेक देम पे, कुछ तो पेनल्टी होनी चाहिए ना, अगर आपके देश से इतना गंदा वायरस निकला है, सारी मैं दुनिया fully की agreed. I fully agree with you. But उसका रीजन क्या है अभी आज की डेट में? It's not going to be United Nations. They themselves will pay. They themselves will pay in the sense that one, I expect a strong possibility in terms of another pandemic coming in China, but that's going to be limited to China only. Okay, that's almost like 2021 is the time when I'm looking at that, September 2021, and it's going to be serious. In all probability, it's going to be disintegration of China into different parts. That's a very strong possibility because China started, जो चाइना की दशा अभी स्टार्ट हुई है, मरकरी की दशा स्टार्ट हुई है उनकी 2019 से सितंबर 2019, जब से कोरोना डेवलप होने लगा है, राइट? लास्ट टाइम हिस्ट्री में जब उनकी ये दशा आई थी तो देवर इन दैट जो वहां पे उनका अफीम का जो चलता था काम, राइट? उससे ऑलमोस्ट लाइक 40% पॉपुलेशन वाज इफेक्टेड. उस टाइम पे ये दशा लास्ट टाइम आई थी उनकी मरकरी की, विच वॉज ऑलमोस्ट 120 years बैकवर्ड्स, विच इज लाइक 1800 1900 के आसपास, राइट? ओके। चाइना वाज इन अ बैड शेप. और दूसरा क्या है कि पर्टिकुलरली ये जो पीरियड है जिसमें आपका मान लीजिए नवंबर 20-22 तारीख से दिसंबर 20th के बाद टिल जनवरी 31st, चाइना विल बी रनिंग इनटू समथिंग विच इज एक्सट्रीमली बैड फॉर इट्स पार्टनर्स. Because China forcefully will like to control certain countries, right? Maybe through debt, which they're already doing, right? But this is going to go into an extreme. And particular जो connection है आपको बताता हूँ, because China की horoscope में Mercury and Ketu is very closely attached. हाँ। Whenever they get attached, they create a person who has extreme level of ego, okay, and very less logic. So that is the kind of situation is going to get into. So China will not act logically. They will actually have a very high level of ego, and they'll be aggressive in their approach. So that is where they will probably create some bit of problem in terms of even a war, right? Maybe a limited war, maybe a full-fledged war. India possibly is going to be like a limited war. Even if India has a limited war situation, is probably is 30% probability that it's going to be fought on Indian lands. India will support some other country where China is getting involved. Taiwan, but China will surely create a war. That is a given situation. That is why I'm saying और geopolitical वो कब situation. होगा सर? This is December 20th to 31st Jan. Maybe plus minus 5 days, 10 days, but that's it. It's not too मतलब far. इन्होंने हमारे न्यू ईयर भी नहीं छोड़ा है, पूरा साल तो नहीं, बर्बाद कर ही लिया है। ये पूरा साल बर्बाद कर दिया और अगले 3-4 महीने इज द लास्ट फेज. तो लास्ट फेज जब भी होता है ना, वो बहुत एक्यूट होता है, शार्प होता है. हम लोग स्टॉक मार्केट में बोलते हैं कि अगर नीचे जाना है मार्केट को, राइट, या ऊपर जाना है, आप जब मान के चलिए जब बहुत शार्प पोजीशन आ गया, शार्प मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड, देन दैट इज द एंड ऑफ दैट गेम. बिकॉज जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि दिया बुझने से पहले एकदम फड़फड़ाता है। जलता है, दैट इज फड़फड़ाता है, वही वाली सिचुएशन. सो ये प्रॉब्लम I होने believe वाला a है. lot फूड in शॉर्टेज mass. अनदर थिंग. Sorry, I believe हाँ a जी. lot in mass vibrations. ऐसा पॉसिबल है, मतलब ऑफ कोर्स आई नो आपके प्रिडिक्शंस गलत नहीं जाते, पर ऐसा पॉसिबल है कि अगर इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग थोड़ी शांति बनाए रखें, हम लोग काम रखें, तो ये बहुत शायद एवर्ट हो सकता है कि डेफिनेटली नहीं 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 नहीं.
उसका रीजन क्या है? बिकॉज ये जितना भी प्रॉब्लम शुरू हुआ है दैट हैज कम फॉर अ प्लेनेट विच इज, इंडियन एस्ट्रोलॉजी में हम लोग उसको बहुत ज्यादा काउंट नहीं करते हैं, ओके, विच इज प्लूटो, ओ बिकॉज इट वाज रिसेंटली इन्वेंटेड. सो पुराने वाली जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है उसमें प्लूटो, नेपच्यून एंड यूरेनस, इनका कभी भी जिक्र नहीं है, मतलब दे नेवर कंसिडर देम, ओके. बट इनका इम्पैक्ट होता है, बिकॉज इनका इम्पैक्ट होता है इन टर्म्स ऑफ जनरेशंस. ओके बिकॉज एस्ट्रोलॉजी में हम लोग बोलते हैं कि ग्रह का जो ट्रांजिट होता है, कोई शॉर्ट टर्म में होता है, कोई 1 महीने में ट्रांजिट कर जाता है, कोई 1 साल में करता है, कोई 2.5 साल में करता है, कोई. पर ये वाले जो प्लैनेट्स है दे टेक अराउंड एनीथिंग रेंजिंग फ्रॉम 6 years to 35-40 years, ओके. सो जो इनके चेंजेस होते हैं व्हेन दे चेंज द हाउस, सो इनके जो चेंजेस होते हैं दे आर वेरी वेरी फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस. गॉट इट So Pluto is the one who's actually creating this problem. वो राइट वेग रोकना is very difficult because ultimately planet की responsibility है to rectify the mistakes and move forward. Rectify one can be done willingly, second can be done forcefully. So Pluto is more of a forceful nature of the planet, right? So it's going to be जी like more forceful, and then once the poison is out of the system, that is the time things will start moving up. So आई which जस्ट I वांट से personally feel is आई जस्ट वांट से हाय टू सम ऑफ द पीपल. आपके लिए एक yeah. कमेंट आया है कि आपका एनालिसिस बहुत अच्छा लग रहा है. लेट मी जस्ट रीड आउट. इतने आ रहे हैं, आते जा रहे हैं, क्या कांट सी स्क्रॉल अप. Oh God, it's tough to read this, guys. I'm so sorry. मल्ली पवार एक्चुअली मल्ली पवार क्या हुआ है, हम लोग ने बहुत सारे लोगों के टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ पहले ले लिए हैं, तो इट विल बी टफ फॉर अविनाश जी टू डू दिस लास्ट मिनट, यू नो. बट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू थैंक द पीपल आर सेइंग पॉजिटिव थिंग्स, क्योंकि बकवास तो बहुत लोग कर रहे हैं, और ये सो अनफॉर्चुनेट कि ऑनलाइन में बकवास करने वाले इतने सारे लोग आ गए हैं. इट्स जस्ट सैड. अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है ना तो प्लीज मत आइए. थैंक यू Booyaks for being positive. Um, somebody's calling you very handsome, by the way. Okay, I can't seem to catch that person's name who said that your analysis is very good. But right now, I want to definitely go into individual predictions, क्योंकि मैंने आपको कुछ date of birth दिए थे. Yes, Very yes, sweet. yes. I can't tell you कितने लोगों ने मुझे DM किया है, friends, cousins, relatives from here, from India and abroad. They were so excited that we were going to be doing this session. Um, who are we picking on first? First is Devika was the first one Okay. who actually wanted some guidance in terms of she wanted to be a social person, so that is something which she wants to speak about. जी. I have seen the horoscope, two issues, right? To be honest, one she is going through the Satsati, right? Satsati first phase is actually the purification of self, right? So अच्छा. it's like it's a internal turmoil, to be honest. Turmoil in the sense that he wants you to follow a particular path, right? And Yeah. normally she's 21 years old, right? So she has a lot to learn, to be honest. जी. So she's going to be following that path. So आज की डेट में क्या है कि शनि जो है वो प्रैक्टिकली 6-7 महीने के बाद इट विल थोड़ा सा कूल डाउन होना स्टार्ट Settle होगा हो उसको. जाए. हाँ. एंड सेकंड उनका मून और केतु अटैच्ड है विद द 10th हाउस, राइट? मून और केतु जब भी अटैच होते हैं तो मून इज माइंड एंड केतु इज आई टोल्ड यू Body. डिटैचमेंट, डिप्रेशन, राइट? सो क्या है कि ये हैं वीनस के नक्षत्र में. सो वीनस के नक्षत्र में जब भी होते हैं तो उनकी इनहेरेंट डिजायर तो होती है बिकमिंग सोशल, ओके. बट जब दोनों अटैच होते हैं तो दे डोंट गिव दी अपर टॉपिंग, राइट? सो अंदर से दे वांट टू बी लाइक अ प्रैक्टिकल और अ सोशल पर्सन, बट वो प्रैक्टिकली कर नहीं पाते हैं. उसका रीजन क्या है कि मून It's केतु true दोनों for अटैच many youngsters today जो अपने मोबाइल फोन पे गेमिंग करते हैं, जिनको ना मतलब लोगों हैं. से मिलने में ज्यादा ऑकवर्ड लगता है, मोबाइल और कंप्यूटर और करेक्ट. PS3 पे बैठना ज्यादा कंफर्टेबल लगता Absolutely. है. Absolutely. Isn't That it a is again common? Rahu and Ketu. It is common. That is why I said no, it is Rahu and Ketu. Because internet is Rahu and Ketu is addiction. Okay. Detachment is like I don't want to be a public figure, right? I will stay at my house and kind of keep working on say even mobile games के ऊपर काम मतलब continuously mobile games खेलना and all. That is all केतु का given है वो. And Rahu is obsession. So एक जगह पे लग गए तो हम लोग वही करते रहेंगे. दैट इज आई सेड कि जो बेसिक इश्यूज आते हैं दैट इज रिलेटेड टू दीज 3 प्लैनेट्स आज की डेट में, जनरेशन में. Okay. So प्रीवियस what is the जनरेशन में दे वर solution for समथिंग. Devika? Are you saying she should just
stay calm, keep low, because साढ़े सत्ती चल रही, क्योंकि साढ़े सत्ती में I remember जब मेरी साढ़े सत्ती चल रही थी, that's when I got into radio. I thought it was like the Yes. coolest साढ़े सत्ती to have. So I don't know नहीं how. सारस्वती में लास्ट फेज इट गिव्स phenomenal रिजल्ट एज वेल बिकॉज शनि की एक चीज बहुत क्लियर है, इफ यू एक्चुअली वर्क हार्ड सो रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली गुड. अगर शनि बहुत अच्छा है तो इज गोइंग टू बी लाइक phenomenal 10 times 15 times 20 times. इफ शनि इज नॉट गुड नॉर्मल, तब भी अगर आपने मेहनत की है, अगर बहुत ही खराब है तब भी अगर आपने मेहनत की है, इट विल गिव यू द कमेंसरेट रिजल्ट्स. सो पहले 5 साल में काम Harshit, करता we है. are going to save this live because this has got a lot of predictions for the financial markets and for, of course, a lot of people who like to invest. So yeah, stick around. You can follow what Avinash ji is saying even after this entire live. So if you can't be around, I totally understand. Thank you, Ambika. All right. So Devika, so what I want to ask you is कि अगर कोई इंसान, कोई भी youngster हमें यहाँ देख रहा है जो anti social feel करते हैं, and like you said, it's probably not their fault, it's the planet. उनके लिए आप specifically देविका को ध्यान में रखते हुए, स्पेसिफिकली फॉर देविका, जब भी राहु और केतु से प्रॉब्लम होती है, टू बी ऑनेस्ट, राइट, द बेस्ट थिंग विच आई हैव सीन, विच आई हैव एक्सपीरियंस्ड, राइट, इज मेडिटेशन इज द बेस्ट वे आउट. देयर इज नो अदर वे आउट. but youngsters and meditation होता नहीं है ना उनसे. करना पड़ेगा इनको, देयर इज नो अदर ऑप्शन. उसका रीजन कितना है? रीजन ये है बिकॉज ये दोनों जो प्लैनेट्स है अंदर से आदमी को डिफरेंट डायरेक्शंस में घुमाते हैं. Okay, I have a question. So unless I I control have a my question. energy. बहुत लोग कहते हैं कि कोई भी कार्य अगर आप फुल कंसंट्रेशन के साथ करो तो वो भी मेडिटेशन हो जाता है. So just ask me, Absolutely. if somebody does, I fully agree. let's just say somebody cooks with a lot of passion, or somebody, Hmm. even actually gamers, I would think gamers इतने फोकस से गेमिंग करते हैं या वीडियोस बनाते हैं, would you think that would account for meditation or no? To be honest, no, because meditation is giving the balance. Okay, whenever we do a meditation, the basic purpose is to, हम लोग अपने आप को बैलेंस करते हैं, अपनी एनर्जीज को, राइट. दैट इज द बेसिक पर्पस. एंड बैलेंस करते हैं, फोकस करते हैं, बिकॉज फोकस करने से क्या होता है, वी स्टार्ट अलाइनिंग जो भी हमारी एनर्जीज होती हैं आसपास की, वी स्टार्ट अलाइनिंग टू देम टुवर्ड्स अ डायरेक्शन. अब उसमें अगर मैं बोलता हूँ पैशन के साथ करता हूँ, वो पहली बात, वो आदमी पैशन के साथ कर ही नहीं पाएगा. इफ इट इज से फूड मेकिंग, राइट, अगर उसको इशू लग रहा है विच रिस्पेक्ट टू राहु एंड केतु, वो नहीं कर पाएगा. रीजन, वो एक लेवल तक कर पाएगा बट आफ्टरवर्ड देयर विल बी डिसकंटिन्यूटी, राइट. सो मेडिटेशन फॉर मी इज बेसिकली व्हेन फोकस आप करते हो, एंड इट्स नॉट लाइक कि पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ मेडिटेशन आपको फॉलो करना है, कुछ करना है. मेडिटेशन इज जस्ट फोकस, whosoever you believe upon, right, whether it's anybody, whether it's nobody, right, you just, even on a hollow circle, you can just start focusing. So mind will move towards a balanced part of life. और that is the best way for Rahu and Ketu impacts. That is the best way. Otherwise, इसके इनकी जो हॉरोस्कोप है, राइट, उसमें दूसरा इशू है, जुपिटर इज रेट्रोग्रेड. Yeah. जुपिटर जब भी रेट्रोग्रेड होता है तो वो जुपिटर इज विजन, एंड विजन एडवाइस, राइट, सो विच इज अ मैक्रो लेवल, बिकॉज जुपिटर इज अ टीचर. सो वो टीचर की कमी हमेशा लगती है. पर्सन विल स्टार्ट गेटिंग इनटू मनी मेकिंग एंड काइंड ऑफ स्टफ, राइट. सो शी विल स्टार्ट अर्निंग प्रीटी अर्ली एज वेल, बिकॉज माइंड विल बी मोर टुवर्ड्स बिजनेस. अच्छा. Yeah, she is very, That's she only wants possible. to make money from what I know. Yeah. या बट एक चीज मैं कह सकता हूँ, बिकॉज जो हॉरोस्कोप है इनकी, यू वेट टिल अराउंड 26 years of एज, राइट. जिन लोग की सारस्वती इस टाइम पीरियड में आती है, विच इज फ्रॉम 17th to say almost like I'll say 30-35, दैट इज द बेस्ट पीरियड फॉर सारस्वती. उसका रीजन क्या है? बिकॉज आदमी गेट्स मेच्योर्ड प्रीटी अर्ली, सो लाइफ में आगे प्रॉब्लम नहीं आती है. Oh. प्रॉब्लम इन द सेंस बिकॉज बेस बन जाता है उसका, राइट. सो अगले 25-30 साल तो शी विल सिंपली विल फ्लाई. Horoscope is good. There is no denial. Social circle will be very reputed as well because Sun is in 11th house, right? So एक जो status होता है friends का, right? That will be pretty high status. Work में कोई issue नहीं है because she is going to. And one another possibility, in all probability, she will stay out of India. वो इंडिया से बाहर, she has a very strong possibility. The horoscope will take her out of India. She is pretty emotional as well because Pisces है, Tennis है, so वो थोड़ा सा एक रहता है, right? बट एक इशू सिर्फ इतना है कि मेडिटेशन इज समथिंग विच इज मस्ट फॉर दीज काइंड ऑफ कुंडलीज. जहां पे भी मून केतु का अटैचमेंट है, मेडिटेशन के बिना काम हो ही नहीं सकता, बिकॉज वो कंप्लीटली हेवार हो जाएगा. इमोशंस विल बी कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल. 21 साल की आपने बोला बहुत जल्दी पैसे कमाने लगेगी, तो व्हेन शुड शी स्टार्ट वर्किंग?
Another 22, 23 practically. Another 2 2 years, years. 2.5 years. Okay. May not be a permanent job because that again depended upon the education, to be honest. But in terms of start making money in maybe like a small business, something part-time business, part-time job, all those possibilities are there. Okay, I like this question because this series is just such a hit. हर्षित कहते हैं कि 1992 स्कैम जो है ये सीरीज, उसमें पंकित पाकित, ओके आई एम सॉरी, प्रतीक होगा, पंकज त्रिपाठी maybe? प्रतीक तो हाँ, प्रतीक होगा। हाँ. पैसा हो, पॉकेट में पैसा होता है तो कुंडली में शनि होने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। That is You know, it's sad but it's true, right? Everybody thinks पैसा है तो तो फिर दुखी आत्मा भी थोड़ा सा एटलीस्ट हैप दिखता है, you're sad, so what, but you have money. I agree. I agree. What is I it? don't know, but वही है कि because ultimately होता क्या है कि पैसा होने के लिए भी stars चाहिए होते हैं ना. So पैसा normally, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि stars is the people who actually decided, right? They probably is the 10% of whatever effort we put in, okay? But that 10% is extremely important, to be honest. I can put 90% of effort, but if that 10% is not there, things are not going to materialize, to be honest. So So उसके stars लिए are एक मैं important. बेसिक मतलब एक हाँ बेसिक फिलोसफी में जरूर एग्री करता हूँ बिकॉज वन इज गिवन बाय गॉड राइट विच इज द बेसिक हॉरोस्कोप वो भगवान ने दिया है उसमें हम लोग चेंज नहीं कर सकते बट चेंज हम लोग एक पॉजिटिव साइड पे कर सकते हैं विच इज थ्रू मेडिटेशन आई एम अ वेरी वेरी फर्म बिलीवर इवन जितने भी स्टार्स हैं लकीरें उसकी बदलने के मेडिटेशन लिए को डिफरेंस है मेडिटेशन कीजिए। एब्सोल्युटली उससे जो है ना उसके स्टार्स का जो फॉर्म है द वे दे रिएक्ट राइट जी, दैट विल कंप्लीटली change in the sense because it is meditation which controls your senses right and राइट, once you control your senses lot of things in the horoscope gets changed या because problems जो होती हैं वो obsession और addiction की होती है या balance तो सब manageable है और वेरी पैसा वेल सेड। everything is controlled by it. Can we move to the next? Yeah. Next was Sandeep was another one right Sorry, Harshit, I don't think you got what he said. He said that money can come to you if it's there in your kundli and your naseeb, but you can change your naseeb by meditation. That's what he said. Of course, money is important. Why is it not important when it gets you food, water, clothes, chat? Why is money not important? But money can't be everything, and it can't come to everyone. है ना? correct Okay. now this is Sandeep from Mumbai right इनके साथ जो बेसिक इशू है इज वेरी एग्रेसिव पर्सन राइट Okay. इन्होंने कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछा है बट प्राइमली वेरी कट थ्रोट पोजिशन इट्स लाइक वेरी कट थ्रोट एग्रेसिव पर्सन प्रोफेशन वाइज एब्सोल्युटली नो इश्यूज राइट ही इन ऑल प्रोबेबिलिटी ईदर हैज टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और अ बिजनेस रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर राइट Okay. मे बी इनटू प्योरली बिजनेस एज वेल बोथ दी Okay. पोजीशंस कैन अराइज ओके दशा अभी चल रही है जुपिटर की सो इन ऑल प्रोबेबिलिटी ही शुड बी इनटू अ जॉब रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर एंड काइंड ऑफ स्टफ ओके moon saturn together again the same issue because whenever moon saturn moon ketu moon rahu okay that is the problem area moon saturn जब भी combine होते हैं पैसा बहुत देते हैं okay पैसा बहुत देंगे but पैसा is going to be in terms of lot of Cash. cash Oh. कैश नहीं कैश देंगे नॉट दैट बैंक ट्रांसफर आप समझ रहे हो मतलब Yeah. राइट इट्स गोइंग टू बी हार्ड कैश ओके सो थ्रू लीगल इलीगल एवरी मींस ओके Okay. बट क्या है कि इनको भी मेडिटेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज ये मून एंड सेटन कई बार नेगेटिवली भी आदमी को बहुत इंपैक्ट कर देते हैं विच इज गेटिंग इनटू सम बिट ऑफ प्रॉब्लम्स Okay. ओके जो इनकी हॉरोस्कोप में आज की डेट में नहीं है बिकॉज टिल द टाइम जुपिटर की दशा चल रही है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ओके शनि की दशा जो स्टार्ट होने वाली है इनकी 2024 से ओके उसमें थोड़ा सा इशू आ सकता है सो इनको क्या है कि जो ट्रांजेक्शन जो भी कर रहे हैं ये राइट उसमें थोड़ा सा कंट्रोल रखना है अगर जॉब में ही है फिर तो कोई फाइट नहीं है बट इफ इज इनटू बिजनेस तो उस टाइप की ट्रांजेक्शंस को अवॉइड करना चाहिए Avoid नाम कीजिए. खराब होने हाँ नाम खराब होने की थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ अगर पैसा है तो शायद नाम भी मैनेज हो सकता है मतलब आई एम अ फर्म बिलीवर एज वेल बट फिर भी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए बिकॉज दे कैन बी अदर रेमिफिकेशंस एज वेल ये प्रॉब्लम हो सकती है इनको My husband is saying you have a full RJ voice. I agree. possible because for me it was like just starting right I never been into Instagram live or X or Y or Z to be No, honest but your voice is amazing.
ओके, पॉसिबली, थैंक्स लॉट। सो इनकी हॉरोस्कोप में और कोई इशू नहीं है, फैमिली लाइफ में थोड़ा सा डिटैचमेंट है, ही इज लाइक इंडिविजुअलिस्टिक, ओके, एंगर इज समथिंग विच ही हैज टू कंट्रोल, बिकॉज अगर ओके, हाँ, anger is something which he has to control, and second most important thing which he has to control is he should never disrespect his parents. That's going to be killing for him, because इनकी horoscope में केतु is important planet, and केतु साथ में मार्स एंड राहु इज इन दी फिफ्थ हाउस विच इज लियो, राइट, लियो की उसमें राशि में है, और नक्षत्र उनका माघा नक्षत्र है। माघा नक्षत्र इज कमिंग फ्रॉम दी ancestors, okay, so this comes with the blessings of ancestors. So if you don't respect your ancestors, everything will be out completely, कुछ भी करेंगे will not get the results. I think this what you just said is good in general for everyone. I feel सब अपने अगर this is parents this को is good respect in करें, no, जनरली पॉसिबल, जनरली सभी के लिए अच्छा है, मैं मना नहीं करूंगा, बट स्पेसिफिकली अगर कुछ लोग जिनका माघा नक्षत्र डोमिनेटिंग प्लेनेट है, उनके लिए तो बहुत मस्ट है, it's very बिकॉज important. वो एक लीनिएज लेके आते हैं साथ में, और अगर आप उस लीनिएज को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जैसे मान लीजिए किंग है, बिकॉज माघा नक्षत्र इज दी थ्रोन इन दी, जो किंग का जो मुकुट लगता था ना उसके बीच में, जो अगर बोल दीजिए दैट इज माघा, ओके। सो अगर लीनिएज से आपको कुछ चीज मिल रहा है फ्रॉम हेरिटेज, राइट, कि अगर मेरे पेरेंट्स और आप उसको राजा, तो ठुकरा रहे हो. आप उसको ठुकरा रहे हो, आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो आप नेगेटिव जा रहे हो, उस केस में प्रॉब्लम होती है। I सो think I बेसिक मुझे got it लगता for है सर इसमें, Sandeep. हाँ, We're gonna move to the next. ओके, Who's the next person? नेक्स्ट वाज Karan Mehta. This was the horoscope. No specific question even he asked, right? But normally he wanted to know the He how wants things to are going make to be. lots of money, name and fame because Very high possibility. Very high possibility he will do that. Okay. Reason, again, the basic reason. उनकी जो शनि की दशा है वो 2008 में शुरू हुई थी, और अभी 12 साल हो गए हैं, 13 साल, राइट। तो जब भी शनि की दशा या साढ़सती आती है, तो आदमी बहुत कुछ लाइफ में बहुत जल्दी सीख जाता है, wise हो जाए. ओके। इनका तो 2024 में शनि की दशा खत्म होगी, तो लास्ट 4 इयर्स जो भी है उसमें अच्छे इनको रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए। इनका जो शनि है दैट इज प्लेस्ड इन सेवेंथ हाउस, सेवेंथ हाउस इज हाउस फॉर बिजनेस, टू बी ऑनेस्ट, इवन वाइफ। सो इनकी वाइफ होगी, शी विल बी ऑल्सो वेरी वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, extremely practical, grounded person, right, who actually gives a base to him. In addition, इनका जो वॉइस है, वॉइस इज ऑल्सो गुड, क्योंकि इनका केतु जो है वो सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, सो केतु ऑल्सो गिव दैट डीप वॉइस, राइट। इन टर्म्स ऑफ मनी नॉट एन इशू, मैरिज जो इनकी, ठीक है, मैरिज इज ऑल्सो नॉट एन इशू। सन मकरी डोमिनेटिंग कैरेक्टर, ही इज अ डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी। जो भी इन्होंने किया है, इन्होंने एंट्रेंस टेस्ट वगैरह भी जब भी दिए होंगे, राइट, सो ये एक्चुअली गॉट थ्रू देम, राइट। सो एक रिप्यूटेड कॉलेज से जो भी एजुकेशन हुआ होगा इनका। इन टर्म्स ऑफ whether he'll do business, he's a businessman only normally, and business of voice related business ये लोग करेंगे, Mr. so maybe Mehta, marketing is he's one good of too. हाँ, गुजो तो marketing is one thing which he is good at, transactions करना is another thing which is he is good at, right, because राहु इनका 8th हाउस में placed है, so that gives like what do you say, in the sense कि राहु जब भी 8th हाउस में होता है, तो lot of transformation happens in somebody's life, okay। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हुआ कि एक चीज से स्टार्ट किया होगा, धीरे धीरे करके he'll move into the other one। बट इतना बोल सकता हूँ, पैसे की कमी नहीं है इनकी हॉरोस्कोप में, एब्सोल्युटली नो। रियल एस्टेट इज अ पॉसिबिलिटी एज वेल, रियल एस्टेट से भी ये पैसा कमा सकते हैं, कोई फाइट नहीं है। क्योंकि इनका जो डिफिकल्ट टाइम पीरियड था ना, डिफिकल्ट टाइम पीरियड में से 12 साल 13 साल इन्होंने ऑलरेडी निकाल लिए हैं अपने लाइफ के, तो आगे वाला जो टाइम पीरियड है वो अच्छा ही है, कोई फाइट नहीं है उसमें, राइट। Super. So no words of wisdom, like you said, for Sandeep. You are told कि हाँ जी, he needs to respect his ancestors and he needs to be careful with his money transactions. यहाँ पे कोई words of wisdom है इनके लिए? नहीं नहीं, इनका इनका कुछ नहीं है। उसका रीजन क्या है कि शनि ने ऑलरेडी बहुत कुछ सिखा दिया लाइफ में, पिछले 12-13 साल में बहुत सीख गए हैं, तो इनको कोई फाइट नहीं है लाइफ में, Who's बिकॉज next? प्रैक्टिकल पार्ट है लाइफ का, हाँ, Yeah. वो सीख लिया है इन्होंने, तो इनको लाइफ में अब कोई फाइट नहीं है, बिकॉज इट्स ऑल लर्न्ड। उनका क्या है कि ही कैन बी अ गुड क्रिएटिव पर्सन एज वेल, वेरी क्रिएटिव। वो करते हैं नहीं करते हैं, बट बिकॉज मून इज वेरी वेल प्लेस्ड, मून बहुत अच्छा है इनका। बट मून सिर्फ एक है कि आराधना नक्षत्र में, सो आराधना नक्षत्र का जो मून होता है वो बड़ा ऑब्सेसिव भी होता है। Nutkhut. Oh,
obsessive. ऑब्सेसिव, बिकॉज होगा क्या कि राधा वैसे मून जो जैमिनी में है वो नटखट होता है। जैमिनी मतलब मिथुन राशि जिसको बोलते हैं, मिथुन ही होता है ना, हाँ. थर्ड मिथुन राशि में जैमिनी में, राइट? वो होता है वैसा, ओके। बट इनका जो आराधना नक्षत्र वाला है उसमें क्या होगा कि गेट्स इनटू बिट ऑफ ऑब्सेशन, यू नो। सो ही विल गो वेरी शार्पली टुवर्ड्स समथिंग, देन वहां पे हार्ट ब्रेक होगा एंड देन विल कम बैक, राइट? तो Okay. इमोशनल टर्मोइल्स जो होते हैं, बहुत दैट इज है. समथिंग विच सी हैज टू। आज पता नहीं कि जितनी भी हॉरोस्कोप्स आ रही है ना उसमें मून इज इंपैक्टेड बाय इधर राहु और केतु। दिस वन आल्सो बिकॉज मून इज इंपैक्टेड बाय केतु, बिकॉज डिग्री वाइज दे आर नॉट टू फार, इट्स लाइक 15-17 डिग्रीज। तो उसमें केतु का इंपैक्ट मून पे भी आता है। Okay, I want to tell तो everyone, even including my sister who's joined from Delhi, Avinash ji ये काम कर रहे हैं, which is astrology, which is very good at, because he is making a beautiful ashram बोलूं क्या बोलूं उसको, but yeah, he's making a place for mental wellness for many people, so he's doing a lot of philanthropy. तो आप अगर उनको पर्सनल कंसल्टेशन करेंगे और जो भी आपके मन में फिगर है वो उनको देंगे तो ये आपका दान ही हो गया, और दान के लिए आपको आपकी रीडिंग भी मिलेगी. So Tina, including you, please contact him personally, because in this life I have already taken some people's details and he's worked on them, and that's how we're talking about those people. यहाँ लाइव में हम लोग किसी के रीडिंग्स नहीं कर रहे हैं लाइव. You want to just end the readings? Who else is there? Is there someone else? there's only one person, Yeah. Himanshu. Himanshu. Okay. Yeah, Himanshu Guliani, right? Fabulous horoscope because he should be working in banking sector, senior position surely, right? कुछ issues थे for last I'll say almost like from August 2019. He actually specifically asked questions about financial status because a lot of things he's facing at the moment, right? वो थोड़ा सा हो रहेगा, बट वो अभी इनको 1.5 साल थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, बट श्योरली ऐसा नहीं कि देयर इज एनीथिंग नेगेटिव और एनीथिंग डिजास्टर्स और वेरी एक्सट्रीम लेवल पे कुछ नेगेटिविटी है। एवरीथिंग इज पॉजिटिव, राइट? एक्सेप्ट क्या होता है ना कि एक आदमी सीईओ बनने के बाद भी हिज एक्सपेक्टेशंस इज इन दैट प्रॉब्ली आई विल बिकम अ ग्लोबल सीईओ समथिंग, उस टाइप की हॉरोस्कोप है। सो ही इज ऑलरेडी आई गेस शुड बी इन अ वेरी सीनियर पोजीशन इन द बैंकिंग सेक्टर, बट सिर्फ क्या है कि प्रॉब्ली ही विल बी लुकिंग एट बिकमिंग आई डोंट नो, ही शुड एटलीस्ट बी द सीनियर सेकंड टियर मैनेजमेंट श्योरली, because horoscope that way is pretty sound horoscope. So इनका क्या है कि अच्छे कुछ करने पोजीशन के वाले लिए लोग इतना डाउट में क्यों हैं? हिमांशु का डाउट क्या हो सकता है अगर वो इतना अच्छा कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिकॉज डाउट जो उन्होंने एक्चुअली पूछा था कि लास्ट 1 साल में 1.5 साल में थिंग्स आर नॉट गोइंग द वे ही वाज ऑलरेडी, राइट? उसका रीजन सिर्फ इतना है बिकॉज अभी इनकी जुपिटर की दशा चल रही है। जुपिटर कुछ चीजों के लिए, जुपिटर नॉर्मली 80% 90% हॉरोस्कोप्स के लिए हमेशा अच्छे रिजल्ट देता है, राइट? बट 10-20% हॉरोस्कोप्स होती हैं, पर्टिकुलरली विच इज टॉरस लगना की जो हॉरोस्कोप्स है उनके लिए जुपिटर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सेम थिंग इज हैपनिंग विद हिम विच स्टार्टेड इन अगस्त 2019 and will continue for another 1.5 years practically, not even 1.5, yeah, almost 1.5 years. But शैलेंद्र उसके जी, बाद things are very अविनाश normal. जी is an IIM pass out who has worked in very big organizations, in a corporate job, and he's primarily a finance person who reads the markets not just with his practical eye, but he also does it astrologically, and he's an amazing astrologer with many people. So it's amazing when science meets another kind of science. I think astrology is also science. True. But That, the personally beauty, speaking, is a rare combination as well, because for whole of my life I had been doing the equity analysis, right, which is fundamental, technical, and kind of stuff, right? When I started using it through astrology, genuinely speaking, effective. it changed, very effective. And that I started not even a year back, to be honest. I started in last September, October. That is the time I started. Right? मैं ना quickly, we are Very- going to be ending this live, तो मैं आपसे ना मेरी जो learnings रही हैं इतने सालों में, क्योंकि मेरा interest बहुत रहा है astrology में, not to study and learn it, but to know how much it can tell you about people. I'm sorry, मतलब I'm going to use a very weird, nasty line, but literally इंसान को वो नंगा कर सकता है in terms of how they think, how they eat, उनका उठना, बैठना, सोचना. You can see it all. It's like a skeleton of a person, है ना? I agree with you. I agree with you. तो मैं ना आपसे, अभी हम हिंदी में बात करेंगे, मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहती हूँ, और तो ये सबके काम आएंगे, है ना? मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन रहा जिसमें मैंने सुना है कि प्लैनेट्स,
जो हमारे होते हैं, और कुछ लोगों के प्लैनेट सही डिग्री में नहीं होते हैं, सही घर में हाँ नहीं होते हैं, और इसके वजह से लोगों की बहुत इश्यूज होती हैं लाइफ में। बट होते मैंने हैं सुना है कि प्लैनेट्स को भी खाना पसंद आता है जैसे हम खाते हैं। एंड आई एम हर्ड सही कि अगर आप वो कुछ खाना खाने लगे या वो उस खाने का सेवन करने लगे, वो प्लैनेट्स भी खुश होते हैं। ये होते किस हैं हद तक सही है? और आप नहीं ये सही है मैं ऐसा नहीं बोलूंगा सही है बिकॉज अल्टीमेटली अगर हम लोग भी एज्यूम करें दे ऑल्सो मेरी फिलोसफी ये है कि दे आर ह्यूमन बीइंग्स टू बी ऑनेस्ट sheer dedication commitment they reach to the level at which they are so it's like somebody is coming to my house and I give him what he likes right he's going to be happy it's the basic same philosophy to be honest gets applied to the planets as well और आपने कहा शनि, राहु, केतु, और ये yeah साल भी राहु का है, तो ये राहु सबसे का साल ज्यादा आपको सेंचुरी राहु तकलीफ की है देते हैं। yeah देते ये हैं इनके इनके फेवरेट खाने क्या हैं? राहु इज उड़द राइट अच्छा, सैटर्न इज वेरी सात्विक सैटर्न को उड़द, कुछ पसंद नहीं है तो उसको फिर बहुत सात्विक दही वड़ा बनाते रहे। दही वड़ा खाते हैं राहु इज another one which is your drinking he likes okay but controlled drinking he likes ओके, it non-veg is another one which he likes to be honest अच्छा, ketu on the other side is very sweet sober without masala very normal food अच्छा, ketu likes that खिचड़ी okay खिचड़ी। खिचड़ी टाइप्स हाँ बहुत ज्यादा मसाले नहीं मतलब नॉर्मल वेरी नॉर्मल खाना शनि इज वेरी प्रैक्टिकल ओके ओके, शनि दैट वे इज प्रैक्टिकल सो ही सेज कि मैकडॉनल्ड्स घर पे ये बर्गर। खाओ हाँ वो घर पे जैसे मतलब बेस्ड ऑन द कंडीशन अगर आप पार्टी में जा रहे हो यू कैन हैव व्हाटएवर ही वांट्स राइट बट इफ ही इज एट होम देन प्रॉब्ली लाइट फूड इज समथिंग व्हिच ही लाइक्स द ओनली थिंग ही रिक्वायर्स डिसिप्लिन कि अगर मेरे को बाहर जाके मैं बोलता हूँ आई हैव टू हैव 3 ड्रिंक्स देन आई नीड टू हैव 3 ड्रिंक्स राइट नीदर 2 नीदर 4 डिसिप्लिन नहीं तोड़ना दैट इज व्हाट ही लाइक्स इन टाइम पे टर्म्स ऑफ खाना फूड है। टाइम पे खाना है बड़ा ये बहुत सिस्टमैटिक बोरिंग है, डिसिप्लिन ये बहुत इट इज बोरिंग है बोरिंग टाइम पे खाना। Shani is very. I'll not touch wood. I'll not say that, but yeah, very hard taskmaster. He's not somebody who he will never let you go. He'll show you a particular timelines in terms of brackets, right? Within this lines, you need to move, right? But you need to decide your own destiny, right? But if you start going outside that line, he'll pull you. He'll show you carrot, right? You'll come back again. So he'll allow you to decide your future. There's a very nice question from a dear friend of mine called Ritu Dharmani. वो बोल रही है ये खाना जो हम कह रहे हैं इन प्लैनेट्स को रिझाने के लिए, क्या हम दान में भी दे सकते हैं कि वो हमें भी खाना? नहीं दान का मैं हमेशा ही बोलूंगा कि दान अगर आप अपना नीड बेस कर रहे हैं राइट जहां पे आपको पता है कि इस आदमी को एक्चुअली ये यूटिलाइज होगा ओके बिकॉज शनि क्या है शनि इज जज राइट सुप्रीम कोर्ट के जज इज शनि ओके सो जज क्या चाहता है कि जो आदमी नीडी है आई गिव इट टू हिम इफ ही इज एक्चुअली ईटिंग इज गोना बी बेनिफिशियल देयर इज नो डिनायल राइट अगर नीडी की हम लोग हेल्प करते हैं किसी भी तरीके से ओके अगर खाना खाना इज द बेस्ट थिंग टू हैव टू बी ऑनेस्ट सो अगर हम लोग एक्चुअल देते हैं जिसको जरूरत है ऑल दीज प्लैनेट्स विल गेट पॉजिटिव नो डिनाइल अबाउट दैट कोई भी चीज, फिर एंड तो आप पर्टिकुलरली चावल दे सैटर्न दो, राहु केतु दाल दे, कोई भी दाल दे दो, किसी को उड़द भी मत दो। सोचना हाँ, ही नहीं है मतलब जनरली स्पीकिंग सोचना ही नहीं है अगर आपको लगता है कि इस आदमी को किसी चीज की नीड है मान लीजिए किसी को खाना देना है कुछ देना है आई एम नॉट सेइंग कि हम लोग एकदम लेविश स्प्रेड दे दें राइट जितना उसको जरूरत है इफ यू कैन अफोर्ड इट डू इट इफ यू yeah. कांट अफोर्ड इट दैट्स अ डिफरेंट थिंग अदरवाइज क्या होता है इंटरनल तो हम लोग को मिलती है ना शांति जनरली स्पीकिंग राइट आपने बोला कि आप मेंटल हेल्थ के लिए आपने ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू की है जिसके लिए आप फंड्स लेते हो फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट यू हैव ऑफ एस्ट्रोलॉजी। और मैंने ये भी सुना है कि सबसे अच्छा दान जो होता है वो किसी के मन को शांत करने का दान होता है। अगर आप किसी से दो मीठे बोल बोल दो या किसी के दुख कम कर दो या उनके मन को थोड़ा हल्का करने के लिए उनसे बात कर लो। एंड आई थिंक कुछ हद तक आपका ये एम है, दिस इज योर बिगर मैक्रो दान, this is my राइट? absolutely this is my absolutely तो absolutely मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कुछ लोग बहुत कठोर बोलते हैं, बहुत रूड होते हैं, बहुत you know that they're scary with the way they talk and they can distress people. Does that harm them in any way? How important is it to speak sweet? I'll not say sweet but to calmly talk calmly is something which is extremely important to be honest because बहुत से planets जो होते हैं कई planetary placements हैं वो actually gives a very harsh voice I agree
बट क्या है कि हार्श बोलने से 2-3 प्लैनेट्स बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं. वन इज सेटल. ओके. शनि बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाता है अगर आप हार्श किसी को बोलते हो, बिकॉज शनि इज कंट्रोलिंग योर ईगो, राइट. वो आदमी को अगर आप उड़ रहे हैं, आप बहुत हार्श बोल रहे हैं, 2 मिनट लगाएंगे वो नीचे लाने में. Because if it is, so Shani is one planet which actually curtails, because he is the one who controls the system and controls. Systems process वो control करते हैं, right? So उनका क्या है कि वो हर आदमी को बहुत जल्दी कंट्रोल में लेके आने वाले हैं. So इसलिए हार्श बोलना श्योरली इज नॉट, कई बार हो जाता है, बट उसमें ये है कि मेरा एक रिक्वेस्ट हमेशा रहता है, हार्श बोलना इज वन थिंग, राइट, बट सेकंड इज इंटेंशंस एज वेल. ओके. सो एज लॉन्ग एज इंटेंशंस हमारी ठीक है, देयर इज लॉट ऑफ सेवियर, टू बी ऑनेस्ट, बट ऑब्वियसली हार्श बोलना इज समथिंग व्हिच इज एग्रेवेटिंग द सिचुएशन. अभी Why क्या do है, we need बहुत सारी मम्मीज जो हैं वो घर पे अटक गई हैं, डैडीज जो हैं वो घर पे अटक गए हैं to? बच्चों के साथ लॉकडाउन में, एंड उनके बीच में बहुत क्लैश होती है. सो how do you nurture your child and not have to scream at them even though your intention might be for the best? Best is meditation, to be honest. ये practically last 4-5 months, I've seen a lot of these cases who came for the consultation. I said everything is okay. It's only like a time pass, right? It's like 4-5 months, just pass the time. But the only thing which you need to probably focus upon is do some meditation, because God has given you that opportunity. When did we had 6 months of holidays, to be honest? Never. So God has given us an opportunity. Why not use it positively? There's Yeah, lot of, that's because true. in my life, yeah, this 6 months have changed a lot of things. Because that is the time when I actually started thinking about NGO and what I'm doing. मतलब ठीक है, financial astrology is one thing which is my profession. Financial fund management is my profession, right? So financial astrology is something which we clubbed with fund management. That is okay. But ultimately we can channelize to the other stuff as well. I have a very controversial question जो मैंने सब एस्ट्रोलॉजिस्ट से पूछा है कि हाँ ये जी. साल 2020, मुझे पता है राहु बहुत मिस्टीरियस होते हैं, बहुत ज्यादा चीजें हाँ. अपने अंदर की जो है वो बोलते नहीं है खुल के. इसके लिए जो आया भी ये कोरोना जस्ट केम आउट ऑफ नोवेयर. बट हाउ इज इट पॉसिबल कि अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपने यू डिडंट सी दिस कमिंग, you didn't see and No. tell people कि ये हाँ. साल भैया थोड़ा रुक जाओ, थम जाओ, कोई प्लान्स मत बनाओ. Nobody could say. you see corona coming? मैं एक्चुअली तब तक, जनरली स्पीकिंग, तब तक मैं एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट लेता था, बट प्राइमली ऑन द पर्सनल साइड, हॉरोस्कोप्स नॉर्मली, बिकॉज दिस हैपेंड इन द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर, राइट. तब Yeah. तक दिमाग ही नहीं लगाया इस साइड जनरली. बट ये जो कोरोना है, कोरोना इज अगेन अ स्टोरी फॉर अनदर 3 months एटलीस्ट. रीजन बिकॉज दिस इज ऑल ड्रिवन बाय प्लूटो. दैट इज द टाइम आई रियलाइज. एंड है कि इंडियन एस्ट्रोलॉजी में प्लूटो को हम लोग उतना काउंट करते नहीं है, जितने भी ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर्स है तो आर यू वो प्लूटो सेइंग को देखते ही नहीं. अब के बाद आप प्लूटो को काफी देखोगे क्योंकि प्लूटो एब्सोल्युटली. का मैं देखता, बिकॉज मैंने भी अल्टीमेटली खोजने की रीजन आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि व्हाई दिस इज हैपनिंग. ओके. बट एक चीज श्योर है कि अगले, मान लीजिए आप 1.5 महीना, अप्रोक्सीमेटली 1.5 months, राइट, ये पिक आउट हो जाएगा. Not even 1.5 months, I'll say another 15 days, 20 days, Corona will peak out. Obviously, the ramification जो उसके हैं, जो results हैं, वो तो थोड़ा लंबा चलेंगे अभी, but peak out कर जाएगा next 15 दिनों में. Yeah. Because this was supposed to happen, because आज की डेट में जो combination है, combination 9th house में is Jupiter and Pluto. जो एक Right. state phase में था, when Jupiter came back, फिर Jupiter अब दोबारा reverse करके वापस जा रहा है. So जब वो Right. Jupiter वापस जाएगा, which is another 15-20 days, right, वो peak out Yeah. हो जाएगा, and उसके बाद is going to be like a normal वे फॉरवर्ड. बट हाँ, बिकॉज इतना होने के बाद जो वो रिजल्ट्स या जो कंडीशंस डेवलप करके जाएगा, वो फिर थिंग्स विल चेंज अ लॉट, बिकॉज देयर गोइंग टू बी अ फूड शॉर्टेज. हमने अपनी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में वी टुक अ लॉन्ग पोजीशन ऑन सोयाबीन वाज वन कमोडिटी, जिसमें हम लोगों ने लिया, बिकॉज वी अंडरस्टूड देयर गोइंग टू बी अ फूड शॉर्टेज, राइट. डॉलर इज अनदर कमोडिटी विच वी आर सेलिंग. So I work with 2 funds as well, right? One is Bombay based, second is Texas, US, right? उनको I just, because अपना तो fundamental चलता ही है साथ में, which is the stock market. But in addition, we give them astrological predictions as well. Now you will say fund, how does private equity fund or long short funds, which is stock market guys, right? Believe in astrology? I'll tell you, जितने भी large scale, because I worked with large scale funds, right? I worked with Avenue Capital, I worked with Actis, I worked with CDC, right? Large funds के साथ मैंने काम किया है. Astrology is never looked upon positively by a fund manager, right? But जो promoter होता है fund का, okay, they do consult astrologer before making large investments. It's a oh loaded statement, okay? But that is what happens.
So यहाँ पे भी आई एम एडवाइजिंग टू वेल्थ प्राइवेट वेल्थ मतलब HNI इंडिविजुअल्स, राइट, लार्ज फैमिली ऑफिसेस, राइट. सो उन लोग को मैं एस्ट्रोलॉजी पे एडवाइस करता हूँ. एंड बिकॉज इंडिया में तो डॉलर शॉर्ट करना इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल बिकॉज इट्स लाइक लॉट ऑफ कंट्रोल. So US में we are short on dollars. We are long on gold because gold is one commodity which we think will go positively. So तो क्या है कि जो टॉप लेवल, जब भी पैसे हो गोल्ड तो ले लो आंख बंद करके. हाँ, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 6 months श्योरली. नेक्स्ट 6 months गोल्ड इज अप $24,000-$2,500. आज की डेट में इट इज अराउंड 1880, $1,880 पर आउंस है. सो 24,000-2,500 which is almost 25% plus from here. Gold is going next 6 months. 6-8 months. Dollar will depreciate. Dollar at the moment is like 91. At the moment is 94. Right? It will go down to 75, 80s, which is going to change all. Yes. At the moment, dollar index worldwide, USD index is 94. What is this going to happen till December next year or what? No, dollar index नहीं दिसंबर तक हो जाएगा फिर तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी honestly. Because this dollar in the initial phase, which was September, October, was 98. राइट. इंडेक्स डॉलर इंडेक्स प्रैक्टिकली मींस कि जितनी 5 करेंसीज है बेसिक, यूरो, जीबीपी, जापानीज येन, स्वीडिश फ्रैंक, उनके अगेंस्ट डॉलर का क्यूमुलेटिव एवरेज निकालते हैं. दैट इज डॉलर यूएसडी इंडेक्स, राइट. अगर यूएसडी इंडेक्स में इतना चेंज आएगा तो दुनिया विल चेंज बिकॉज 70% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज 70s में कब जाएगा? नेक्स्ट 3-4 years, 4 years. 4 years. But that's going to change because even that 20% is it's a play havoc serious with stuff. all of It's a us. very serious stuff. Yeah, it's a very serious stuff. I'm so happy कि हमारे इस कॉन्वर्सेशन में बहुत सारे लोग ने टेक बैक्स लिए हैं. 1 घंटा हो गया है. आई वुड लाइक यू टू एट अ वेरी जेनेरिक लेवल, क्योंकि आप टचवुड इतना फाइनेंस में होते हुए भी आपने अपना दिल सही रखा है. मुझे आज बहुत इंटरेस्टिंग एक जिफ दिखा जिसमें इंसान जब छोटा होता है तो उसका दिल बड़ा होता है, दिमाग छोटा होता है, और जैसे बड़ा होते जाता है तो दिल छोटा हो जाता है और दिमाग इतना बड़ा होता है. And that's the root cause of all problems. That's what it said. I'm going to actually post it on my Insta story. So before I say bye to everybody, अविनाश जी हिंदी में बताइए आपकी 3 learnings लाइफ में ताकि हम सब अच्छा करें in general. Somebody just has pointed out very well कि जब आप दान करो तो खाना दान करो, सबके काम आता है, दिल से करो. You said some wonderful other things which I have also forgotten now. But if I had to just quickly, हाँ मीठा बोलो आपने कहा. You know, जितना हो सके don't be rude with people. Yes, absolutely. Yeah. And third is control your senses. Control your senses. And That's important. meditation. Yes, absolutely. Beautiful. Absolutely. Please take back. Somebody pointed out. Is there anything else you want to say before Instagram? No, these are the three absolutely summarized you fabulously because these are the 3 things which I personally feel is important. And one thing which I just want to say, right? Your intentions is something which is extremely, extremely, extremely important because that is something which should decide the way you act. Okay, whether in the personal life or in the professional life, there might be a lot of people who will come and may have a harsh voice for a particular moment, right? But if as long as their intentions are right, I guess everything else is going to fall in place. So intentions is something which you should always judge. शायद इसीलिए शायद बच्चे जो हैं अपने माँ बाप को बहुत प्यार करते ही हैं अगर उनको पता उनके इंटेंशंस अच्छे हैं उनके लिए, और अगर उनको लगा कि उनका इंटेंशन सही नहीं है फॉर व्हाटएवर रीजंस तो शायद वो रूट के भी चले जाएं. बट थैंक यू सो मच. आई हैव लर्न सो मच एंड आई थिंक आप जिस ठहराव से बोलते हो और जिस मैक्रो लेवल पे बोलते हो ऐसे लगता है लिटरली साइंस इज मीटिंग our own Vedic science of astrology, and it's wonderful to learn so much. Well, and I've suggested to the government as well. Let's see how do they work on this, because I think there's a lot of depth in astrology. There's a lot of depth, which probably even Ayurvedic medicines is another thing which we have a lot of depth. Probably we have never commercialized it, to be honest, the way it should have been. But let's see. हाँ, और हम लोग उसको cool. We don't show it as a cool thing, you know. Maybe that's our problem at some level. We are always a bit hesitant. This is not how will people feel about it and X and Y and Z. But my thing. मतलब विदेश चले जाओ, एक पॉइंट को इतना मार्केट करते हैं, होगा कुछ नहीं 30 पॉइंट होगा, लेकिन हमारे देश में मतलब मैजिकल चीजें हैं, जगहें हैं, but somehow we've not marketed it well. So we haven't. I had that experience in Ujjain, which has 82 places of magical places of visiting. You must go.
What a place! It's a must go for us Indians. It's just amazing. Ujjain, I actually do want to go because this Oh, you have Mahashiv to. I think it's a sign. Mahan, मैंने it उज्जैन का is. नाम क्यों लिया है? आपको तो जाना ही पड़ेगा. No, I'll surely go. I'll touch wood. Thank you so much for doing this for us. It's a pleasure. And my birthday is coming on the 4th of November. I'd like 4th you of to, November. after this chat, give me Vishesh Tippani as my birthday gift. No, I'll And I will That share helps with all a my lot. Followers. Thank you so much, Avinash ji. Lots of It's a pleasure. love, and we will bring you back again soon for many other people's readings. मैं चाहती हूँ जो लोग genuinely change चाहते हैं life में, and you're looking for the positive sign, please do DM me. That's fine. Avinash ji is known to me now. But for the ones who can have a little energy exchange via money, he is using it for a good cause. Please go. And even resources as well, to be honest. If somebody can put some effort, more than welcome. Some volunteers, fabulous. Because we're going to be running programs across, right? I'm all in. Not an How issue. nice. How nice. Yeah. God bless you. See you soon. Thanks a lot. Thanks for your efforts. Namaste. Bye. Bye. Namaste.